السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اردو ناول بائی ایمو۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تو آج میں آئی ہوں ایک بہت ہی خوبصورت ناول کے ساتھ جس کا نام ہے آنکھوں میں قید، جس کی مصنفہ ہیں عائشہ مغل۔ تو چلیے ناول شروع کرتے ہیں۔ جنت جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، بابا ڈانٹ رہے ہیں۔ اپنے بالوں کو سلجھاتی ہوئی جنت نے پھر سے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ جنت جلدی کرو، باہر ماما بھی مسلسل بول رہی ہیں، کتنی بار کہا ہے جلدی اٹھ جایا کرو، جانتی ہو تمہاری وجہ سے ماما مجھے کتنی باتیں سناتی ہیں۔ منت اسے ڈانٹتی ہوئی ساتھ ساتھ اس کی کتابیں بیگ میں ڈالنے لگی۔ آپ ہی بس ہو گیا، کیوں اتنا غصہ کر رہی ہیں؟ پہلے سارا دن اس ڈائن کی باتیں بندہ سنے، اب آپ بھی بولنا شروع ہو گئی ہیں۔ جنت منہ بنا کر خفگی سے بولی۔ جنت بری بات، ماما ہے ہماری، ایسی نہیں کہتے۔ منت نے ڈپٹا اسے۔ آپ بھی صبح صبح موڈ خراب نہ کریں۔ اچھا بابا اب جلدی چلو۔ وہ اپنی چادر سیٹ کرتی ہوئی باہر آئی۔ یہ تم دونوں کیا اندر باتیں کرنے لگی ہوئی تھی؟ کتنی بار منع کیا ہے یہ چھپ کر باتیں مت کیا کرو اور جلدی اٹھا کرو، کتنی دیر کر دی۔ زینت بیگم دونوں پر چڑھ دوڑی۔ بابا دیکھ رہے ہیں ماما کو صبح صبح ڈانٹنے لگ گئی ہیں، اس گھر میں ایک گھڑی بھی سکون نہیں ملے گا۔ جنت غصے میں کہتی پیٹ پھیر گئی۔ جنت بری بات، تمہاری ماما ہے ایسے نہیں کہتے۔ فاروق صاحب نے غصے میں کہا۔ سوری بابا، پر میں انہیں اپنی ماما نہیں مانتی، میری ماں مر چکی ہے۔ جنت یہ کہتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اللہ حافظ بابا، منت یہ کہتی ہوئی جنت کے پیچھے چلی گئی۔ الیاس صاحب کی دو بیٹیاں ہیں، جنت اور منت، جبکہ زینت ان کی دوسری بیوی ہے۔ جنت 15 سال کی ہے اور منت 20 سال کی۔ پریشے اگر تم رونا بند کرو گی تو میں کچھ بات کروں گا نا۔ جہاں تک میرا خیال ہے کل رات تم نے ہی مجھے ڈرنک دی تھی، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ مجھے ہوش نہیں رہتی بالکل بھی۔ زارون انتہائی غصے کے عالم میں بولا۔ زارون اپنی بکواس بند کرو، مجھے پہلے ہی تم پر بہت غصہ ہے اور اب تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ پریشے اس کا گریبان پکڑ کر بولی۔ پری حد میں رہو۔ زارون گھرایا۔ زارون، حد تو تم نے پار کر دی ہے، مجھے تم سے ایسی گھٹیا حرکت کی امید نہیں تھی۔ کیوں کیا؟ پری روتی ہوئی بولی۔ پری یہ پہلے رونے والا ڈرامہ بند کرو، اس کے بعد تم سے بات کروں گا۔ زارون رخ موڑتا ہوا بولا۔ زارون تم ایسے مجھ سے رخ نہیں موڑ سکتے۔ پری نے کھینچ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اچھا پری، رونا بند کرو، ابھی تم گھر جاؤ، چلو شاباش۔ زارون نے آرام سے اسے کہا، پر اس وقت زارون کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پری کو زندہ زمین میں گاڑ دے۔ پریشے کے باہر نکلتے ہی اویس روم میں داخل ہوا۔ زارون یہ صبح صبح کیا کر رہی تھی؟ رات کو گئی نہیں تھی؟ زارون، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، اویس سخت لہجے میں بولا۔ زارون نے ساری بات اویس کو بتا دی۔ زارون تم پاگل ہو گئے ہو، یہ تم نے کیا کیا؟ اویس نے گریبان پکڑ کر کہا۔ اچھا زارون، ایک بار تو ریلیکس ہو، سمجھ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اویس نے اسے صوفے پر بٹھایا۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ زارون نے خاموشی اختیار کر لی۔ زارون بہت چھوٹا تھا جب اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی۔ زارون کی ایک بہن کشف ہے جو کہ زارون سے 2 سال بڑی ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے۔ اویس زارون کا دوست ہے جو کہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ زارون میٹنگ سے فارغ ہو کر فائل دیکھتا ہوا آفس میں داخل ہوا۔ او جناب، کتنی بار منع کیا ہے میری چیزوں کو یوں مت چھیڑا کر۔ زارون اویس کے ہاتھ سے اپنی ڈائری چھینتا ہوا بولا۔ زارون، یہ جو تمہیں لڑکیوں میں خوبیاں پسند ہیں، ان میں سے کوئی خوبی پری میں نہیں ہے۔ اویس جلے پر نمک چھڑکتا ہوا بولا۔ اویس تو نہ باز آ جا، بندے کا کچھ پرسنل بھی ہوتا ہے۔ زارون اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ یار مجھ سے بھی کچھ پرسنل ہے؟ صحیح، تیرا بڑا آیا پرسنل رکھنے والا، اور ویسے بھی اگر کچھ تو پرسنل رکھنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو تیرے منہ پر نظر آ جاتا ہے، تیرے دماغ میں جو چل رہا ہوتا ہے۔ اویس ہنستا ہوا بولا۔ تجھے پتہ چل جاتا ہے تو بڑی بات ہے، چل اب بھاگ یہاں سے، سارا ٹائم ضائع کر دیا، مجھے دوسری میٹنگ بھی اٹینڈ کرنی ہے۔ وہ فائل کو جانچتی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ پہلے مجھے کافی پلا دو، پھر میں چلے جاؤں گا۔ وہ کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر ٹیبل پر ٹانگیں رکھ کر بولا۔ زارون نے اسے گھورتے ہوئے لمبا سانس خارج کیا۔ جنت اٹھ جاؤ، چھوٹی ماما کو پتہ چلا جب سے آئی ہو سو رہی ہو تو بہت ڈانٹ پڑے گی، اٹھ جاؤ۔
मन्नत उसे कब से उठाने की कोशिश कर रही थी और साथ जीनत बेगम का डर कहीं वो आ गई तो दोनों की चित्रोल होनी थी। बस आप ही 2 मिनट और सोने दें, आप तब तक खाना लेकर आए, मैं उठ जाती हूँ, वो ऊँघती हुई बोली। अच्छा शाबाश मेरी जान, जल्दी उठकर बाहर आ जाए। मन्नत ने उसकी पेशानी से बाल साइड पर किए जिनकी बेबी कटिंग थी। मन्नत कमरे से बाहर चली गई। तुम अभी तक सो रही हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है? जब देखो बेड तोड़ रही होती हो। जीनत बेगम ने उससे बालों से पकड़कर उठाया। छोड़े, छोड़े मुझे, वो रोती हुई बोली। छोटी मामा छोड़े। मन्नत ने जीनत बेगम को पीछे किया। जन्नत को बाहर लेकर चली गई। जीनत बेगम उनके पीछे गई। मन्नत और फ़ारूक को रात को अपने भाई की तरफ जाना है। मुझे और फ़ारूक को रात को अपने भाई की तरफ जाना है। मन्नत तुम कल स्कूल चली जाना, जन्नत तुम कल छुट्टी कर लेना। घर भी तो किसी को रहना है। जीनत बेगम तलख लहजे में जन्नत को घूरती हुई बोली। पर छोटी मामा, जन्नत कैसे घर में अकेली रहेगी? मन्नत परेशानी से बोली। कुछ नहीं होता अकेले इससे, और अगर तुमने छुट्टी की तो वो तुम्हें जॉब से निकाल देंगे। इस वजह से तुम्हारा जाना ज़रूरी है। इस मैडम को कुछ नहीं होता घर में अकेले। जीनत बेगम लापरवाही से बोली। आप ही, मुझे कुछ नहीं होता, मैं रह लूंगी। जन्नत आईब्रो उकचाकर बोली। आसमान पर हर तरफ स्याही ही छा गई थी। लॉन में हल्की हल्की हवा के बाइस पौधे झूम रहे थे। वो लैपटॉप सामने रखे गालों को गुजा रहा था, गोया जैसे कुछ गहरा सोच रहा हो। ये लो कॉफ़ी। अवैस ने हर तरफ छाई खामोशी को उसके सामने कॉफ़ी रखते हुए तोड़ा। ओह थैंक्स, हस्बे ज़रूरत जवाब आया। यार, हर वक्त इसमें घुसे रहते हो, 2 घड़ी मुझसे भी बात कर लिया करो। अवैस उसके सामने रखा लैपटॉप बंद करके बोला। अच्छा, फिर तेरा बाप बड़ी मीटिंग में मुझे बात करने के काबिल ना छोड़े। ज़ारून काफ़ी का सिप लेता हुआ बोला। ज़ारून यार, एक प्रॉब्लम हो गई है। अवैस मस्त होकर बोला। पहला बंदा देखा है जिसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम हो जाए वो खुश होकर बता रहा है। ज़ारून अवैस पर हंसता हुआ बोला। अच्छा यार, सुन तो सही, इतनी फनी प्रॉब्लम हुई है। आज यूनी में एक लड़की ने आई लव यू बोला। मुझे समझ ही नहीं आई कि लड़की ने क्या बोला। मैंने पूछा जी बहन, कुछ कहा? तो वो मुझे थप्पड़ मारकर चली गई। अवैस हंसता हुआ बोला। अव तो हंस क्यों रहा है? सच में तो हंस रहा है। ज़ारून उसके चेहरे पर देखता हुआ बोला। हाँ यार, मैं हंस रहा हूँ। अगर वो मुझसे मोहब्बत करती तो दूसरी बार तो बताती उसने क्या कहा है। वो सीधा थप्पड़ मारकर ही चली गई। अवैस एकदम खामोश हो गया। क्या हुआ है? हंसते दांत निकालते बड़े प्यारे लग रहे थे। ज़ारून मजाक उड़ाता हुआ बोला। ज़ारून, मैं सोच रहा हूँ जब तुम्हारी शादी हो जाएगी वो बागर बिल्ली पड़ी आ जाएगी, फिर हम तो जुदा हो जाएंगे, मैं अकेला हो जाऊंगा। अवैस एकदम उदास होकर बोला। तो तू भी शादी कर लेना, या अंकल ने तेरी शादी ही नहीं करवानी? ज़ारून हंसता हुआ बोला। बल्कि तुझे रिश्ता किसने देना है? ज़ारून हंसकर बोला। हा हा हा, तुझे परी मिल गई है, मुझे भी कोई मिल जाएगी, पर तेरी इस बागर बिल्ली से अच्छी ही मिलेगी। अवैस की आंखें अचानक नम हो गईं। यार, मुझे इस लड़की के बारे में बता ही दे। आज जिस पर तू लुट गया है, फिना हो गया है और बर्बाद हो गया है। ज़ारून आज फिर वो टॉपिक खोलकर बैठ गया जो अवैस मुश्किलों से भूलता। सॉरी यार, तुझे ही तो नहीं बता सकता, वो मन ही मन में बोला। चल ना बता, मैं कह रहा था कल रात मुझे एक दोस्त से मिलने जाना है, तो तुमने मेरे साथ आना है। ज़रून ने कॉफ़ी का खाली मग टेबल पर रखा, लैपटॉप खोल लिया। आप ही किचन में हैं? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। जन्नत किचन में दाखिल होती हुई बोली। मेरी जान, मुझे देर हो रही है। ये एप्पल हैं, मैंने काट दिए हैं, ये खा लो, नाश्ता बना पड़ा है, वो भी कर लेना, और दरवाज़ा याद से बंद कर लेना। मन्नत जल्दी से कहती चली गई। जन्नत सेब खाती हुई अपनी सोचों में गुम हो गई। कितना खूबसूरत होगा मेरे ख्वाबों का शहजादा, मुझे इन सब से दूर ले जाएगा, जिधर सिर्फ वो और मैं होंगे, हमारे दरमियान कोई तीसरा नहीं होगा। कब वो आएगा, कब मुझे ले जाएगा, छोटी मामा से मुझे बचाएगा, मुझसे बहुत मोहब्बत करेगा। बाबा तो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मुझे वो करेगा। मुझे हल्की सी भी चोट लगेगी तो उसे दर्द होगा, मेरा शहजादा। जन्नत अपनी ही सोचों में गुम थी।
जब उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है, वो एकदम पीछे मुड़ी। क्या सोच रही थी जाना? वो शेव पर अंगूठा रगड़ता हुआ बोला, मामू जान, आप छोटी मामा घर नहीं हैं। जन्नत अपनी पेशानी से पसीना साफ करती हुई 2 कदम पीछे हुई। जानता हूँ जीनत घर पर नहीं है, इसलिए ही तो आया हूँ। वैसे तुम मुझे जान कह सकती हो, मामू नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा मामू नहीं हूँ। उसामा उस पर नजर गाड़े हुए बोला, आप अभी जाएं, जब मामा आए तब आना। जन्नत बहादुरी का मुजाहरा करते हुए बोली। उसामा 2 कदम आगे हुआ, जन्नत 2 कदम पीछे हुई, मगर दीवार के साथ लग गई। उसामा ने दीवार पर उसके गिर्द हाथ रखे। कितनी स्वीट हो तुम। उसामा ने उसकी पेशानी पर बिखरे बाल साइड पे किए। जन्नत एकदम उसे धक्का देकर बाहर की तरफ भाग गई। जन्नत रुक जाओ, सॉरी जन्नत, मैं मजाक कर रहा था। उसामा उसके पीछे भागकर बोला, मगर वो घर से ही बाहर निकल चुकी थी। जन्नत रुक जाओ, देखो मैं अभी वापस घर चला जाऊंगा, वापस आओ। जन्नत उसकी बातें सुनी अनसुनी करती अपनी ही धुन में मगन आगे बढ़ती गई। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि वो किधर जा रही है। अचानक जन्नत उसामा की निगाहों से ओझल हो गई। अब वो सही मायनों में परेशान हो गया। उससे तो इतना खास पता भी नहीं था रास्तों का। शाम हो चुकी थी, आसमान पर बादल छा चुके थे, हर तरफ खामोशी थी, सड़क पर ना होने के बराबर गाड़ियां थीं। वो घबराई हुई कभी कहीं देखती तो कभी कहीं। वो नहीं जानती थी वो किधर आ चुकी है। अब तो हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। सड़क के गिर्द घने दरख्तों से उसे खौफ आने लगा। हवा आहिस्ता आहिस्ता हवा तेज होने लगी। उसके बाल उड़ने लगे जो खुले थे। भागते हुए दुपट्टा उसका कहीं गिर गया था। या अल्लाह, मैं कहाँ आ गई? मुझे तो पता भी नहीं है ये कौन सी जगह है। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? अल्लाह जी प्लीज मेरी मदद करें। बारिश के साथ उसके आंसू भी बरसने लगे। अचानक उसके पास आकर गाड़ी रुकी। आप इतनी रात को यूं सुनसान सड़क पर क्या कर रही हैं? ये इलाका ठीक नहीं है। जरून उसकी हालत इग्नोर करता हुआ बोला, आए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। जन्नत से कोई जवाब ना पाकर वो एक बार फिर खोया हुआ। मुझे आपके साथ नहीं जाना, वो खुद पर काबू पाती हुई बोली। ट्रस्ट में चले, मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ। जरूर ने गाड़ी का दरवाजा खोला। ओ बहना आ जाए, नहीं हम आपको खा जाएंगे, अवैस फ्रैंक होकर बोला। जन्नत हामती कामती अंदर बैठ गई। आपको किधर जाना है? आपको किधर जाना है? घर का कोई पता याद है? जरून ड्राइविंग सीट संभालता हुआ बोला, मुझे घर का रास्ता नहीं मालूम। वो अपने हाथ की उंगलियां मरोड़ती हुई बोली, वहाँ की कोई निशानी बता दें, कोई मशहूर चीज़ बता दें। अवैस मजाहिया अंदाज में बोला, वहाँ पर रेस्टोरेंट है। जन्नत एक रेस्टोरेंट का नाम बताती हुई बोली, हम भी उधर ही जा रहे हैं, आपको भी छोड़ देते हैं। अवैस जल्दी से बोला। थोड़ी देर बाद जन्नत का घर आ गया। वो जल्दी से उतरकर घर की तरफ गई, जबकि जरून और अवैस ने वहीं गाड़ी खड़ी की और रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। जन्नत ने बेल बजाई। थोड़ी देर बाद मन्नत ने दरवाज़ा खोला। जन्नत फौरन से मन्नत के गले लगकर रोने लगी जब मन्नत ने उसे एक झटके से खुद से अलग किया। तुम अभी भी अपनी ये मनहूस शक्ल दिखाने आ गई? जीनत ने उसका बैग बाहर फेंका। जन्नत शशदर रह गई। अपना सामान पकड़ो और निकलती बनो इस घर से, इससे पहले तुम्हारा बाप आकर अपने हाथ से तुम्हारा खून कर दे। जीनत तलख लहजे में कहती दरवाज़ा बंद करने लगी। कह रही हैं, मैं किधर जाऊंगी? जन्नत हक्का बक्का बैग की तरफ देखती हुई बोली, छोटी मामा, ये आप किसके साथ सारा दिन गुजार कर आई हो? वो भरी निगाहों से देखकर उसे बोली, आप भी मामा ये कह रही हैं? प्लीज मुझे अंदर आने दें, आपको सब कुछ बता दूंगी। प्लीज मुझे अंदर आने दें, बाहर बहुत ठंड है। वो भरती हुई बारिश में खड़ी कांपती हुई बोली। जन्नत चली जाओ, मन्नत ने नफरत से कहा। आप भी जन्नत ने बेयकीनी की कैफियत में बोली। जन्नत दफा हो जाओ, तुम मेरे लिए मर गई हो और मैंने तुम पर फातिहा पढ़ दी। फारूक साहब ने ये कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। बाबा जानी दरवाज़ा खोले, मेरी बात तो सुने। बाबा प्लीज़। वो रोती हुई दरवाज़ा खटखटाने लगी, मगर कोई भी ना आया। बारिश थी कि बढ़ती ही जा रही थी। जन्नत वहीं गिर गई। रेस्टोरेंट से निकलते ज़ारून की नज़र सीधी उस पर गई, जो खुद को बारिश से बचाता गाड़ी की तरफ जाने लगा था। भागकर जन्नत की तरफ आया। जल्दी से ज़ारून ने उससे अपनी बाहों में भर लिया और गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया। इतने में अवैस भी आ गया। ज़ारून ने जन्नत का बैग उठाया।
गाड़ी में रखा। अवैस गाड़ी ड्राइव करो। ज़रून पिछली सीट पर बैठता हुआ बोला, ज़रून तुम इससे घर लेकर जाओगे, पागल हो गए हो। उस परी को पता चल गया। ज़रून ने उसकी बात काट दी। बात की बात में देखी जाएगी। ज़रून ने उसका सर अपनी गोद में रख लिया। जन्नत के सारे कपड़े जिस्म के साथ लग चुके थे। ज़रून ने नजरें चुराते हुए अपनी जैकेट उसके ऊपर डाल दी। ओए मस्त मलंग, कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई? अवैस बैक मिरर से देखता हुआ बोला, कहीं तू अपनी बकवास बंद कर लिया कर। ज़रून जन्नत के चेहरे से नजरें हटाता हुआ बोला, यार मान ना मान, मुझे तो ये फ्यूचर भाभी लग रही हैं। अवैस घर के सामने गाड़ी रोकता हुआ बोला, तेरी ख्वाहिश जल्द पूरी करूंगा। ज़रून हंसता हुआ बोला, वो तो मुझे भी लग रहा है, तू कुछ ज्यादा ही जल्दी पूरी करेगा। अवैस उसके चेहरे पर देखता हुआ बोला। ज़रून ने जन्नत को उठाया और कमरे में लाकर बेड पर लेटा दिया। कितनी मासूम हैं आप। ज़रून एक नज़र उस पर डालकर कंबल उस पर ओढ़कर बाहर चला गया। जन्नत ने करवट बदली जब अचानक उसके दिमाग में झमका हुआ, मगर आंखें बंद ही थीं। अचानक उसके लबों पर मुस्कुराहट आई। मुझे यकीन था बाबा जानी जरूर मुझे अंदर ले जाएंगे। जन्नत ने जोर से अंगड़ाई लेते हुए धीरे धीरे आंखें खोली। ये किसका घर है? मैं किधर हूँ? जन्नत इर्द गिर्द कमरे का जायजा लेती हुई परेशानी से एक झटके से उठकर बैठी। सोचने लगी। कमरे को जांचती नजरों से देखती हुई वो कमरे में लगी खूबसूरत सी लड़की की तस्वीरें देखने लगी। इतने में कमरे का दरवाजा खुला। सामने खड़े शख्स को देखकर जन्नत के रोंगटे खड़े हो गए। जन्नत ने जल्दी से मुंह पर कंबल कर लिया। मैं आपके लिए नाश्ता लाया था, रख कर जा रहा हूँ, प्लीज कर लेना। ज़रून शाइस्तगी से कहता बाहर चला गया। जन्नत ने मुंह से कंबल हटाया। गरम गरम नाश्ता देखकर जन्नत को शदीद भूख का एहसास हुआ। मैंने तो कल कल से सिर्फ एप्पल के 2 पीस ही खाए हुए हैं। जन्नत नाश्ते की तरफ देखकर बुड़बुड़ाई और नाश्ता करने लगी। जन्नत ने ट्रे साइड पर रखा। इतने में फिर ज़रून आ गया। एक्सक्यूज मी, ज़रून ने उसे मुखातिब किया, आप कौन और मैं यहाँ कैसे आई? जन्नत खूब बहादुरी का मुजाहरा करती हुई बोली, मगर उसका दिल सूखे पत्ते की मानिंद लर्ज रहा था। वो कल आप बेहोश हो गई थी तो मैं आपको अपने साथ लेकर आ गया। इसे अपना ही घर समझे। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक कह सकती हैं। ज़रून मुस्कुराता हुआ ये कहकर चला गया। जन्नत हक्का बक्का उसकी पुश्त को घूरने लगी। या अल्लाह, अब ये कौन सा फरिश्ता है जो मुझ पे इतना मेहरबान हो रहा है? उफ अल्लाह, मुझे बहुत डर लग रहा है। जन्नत खुद से कहती रोने लगी। मोटे मोटे आंसू गालों से होते थोड़ी से टिप टिप गिरने लगे। काश मामा आज आप होती, आपकी बेटी यूं दरबदर ना होती। क्यों सामा, तुमने मेरे साथ ऐसा किया? खुदा पूछेगा तुमसे। अब मैं किधर जाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। बाबा जानी भी ने भी मुझ पे यकीन नहीं किया। जन्नत मुंह पर हाथ रखकर अपनी हिचकियों का गला घूंटने लगी। ज़रून तो इतने आराम से बैठा है, बता इस बच्ची का क्या करना है? पता भी है वो सारा दिन रोती रही है, उसके रोने की आवाज़ लाउंज तक आ रही थी। अवैस लान में ज़रून के सामने बैठा हुआ बोला, यार मोहब्बत हो गई है। ज़रून मसरूफाना अंदाज में बोला, व्हाट आर यू मैड? अवैस कुर्सी से उठकर एकदम खड़ा हो गया। यार क्या करूं, उसकी मासूमियत हाय जान निकाल कर ले गई। ज़ारून दिल पर हाथ रखकर बोला, ओ जनाब पागल मत बनो, इससे घर छोड़कर आओ। अगर तेरी उस डाइन को पता चल गया तो उसने तेरी जान निकाल लेनी है। अवैस ने फिर से कुर्सी पर बैठते हुए कहा, यार अवैस, मुझे उससे सच में मोहब्बत हो गई है। वो बहुत अच्छी है, पर मुझे उसके सामने जाने से डर लगता है। ज़ारून कुर्सी की पुश्त से सर टिकाकर बोला, ओ हेलो मिस्टर, ज़्यादा ड्रामे मत कर और जाकर उसे डिनर दे आओ। तो जितना भी है, अगर अचानक परीक्षे आ गई उसे क्या बताएगा? अवैस उसे डराने की कोशिश की। वो उस दिन के बाद मुझे उम्मीद नहीं है आएगी। ज़रून धीरे से बोला, जैसे उसका राज कोई जान ना ले। अच्छा चल शाबाश, उठ के जा उसके पास और अपने दिल का हाल बयान कर दे। थप्पड़ खाकर मत आना। अवैस शरारत से बोला, मैं थप्पड़ खाने वालों में से नहीं हूँ। ज़रून हंसता हुआ चला गया। तुमने ऐसे ही उसके जाने का शोक मनाना है क्या? जीनत बेगम कमरे में दाखिल हुई। सामने मन्नत को रोता देखकर उनका पारा चढ़ गया। छोटी मम्मा, कोई काम था? मन्नत जल्दी से आंसू साफ करती हुई बोली, तुम्हारे बाप ने कहा है कल तुम्हारा निकाह है, वो जल्दी करना चाहते हैं। कहीं तुम भी छोटी बहन की तरह ना कोई चांद चढ़ा लो। जीनत बेगम उसे हकारत भरी निगाहों से देखती हुई बोली,
पर मेरा निकाह किसके साथ? मन्नत घबराती हुई बोली। उसामा के साथ। हिसाब ज़रूरत जवाब आया। मन्नत का रंग फक हो गया जीनत बेगम की बात सुनकर। मन्नत इससे पहले कुछ बोलती जीनत बेगम बाहर चली गई। ज़रून हल्की सी दस्तक देकर कमरे में दाखिल हुआ। जन्नत वैसे ही रोने में मसरूफ थी। ज़रून ने खांसते हुए उसे अपने होने का पता दिया। आप कितना रोती हैं? इतने आंसू कहाँ से लाती हैं? मैं आपके लिए डिनर लाया था। ज़रून ने साइड टेबल पर ट्रे रखी। मुझे भूख नहीं है, मुझे घर छोड़कर आए। जन्नत तेवरी चढ़ाकर बोली। ज़रून को यूं लगा किसी ने उसके बदन से जान निकाल ली। अच्छा, मैं आपको घर छोड़कर आता हूँ, पर आपके घर वालों ने आपको ना रखा तो फिर आप क्या करेंगी? ज़ारून ने बगौर उसके चेहरे का जायजा लिया। तो कहीं जाकर मर जाऊंगी या किसी ईदी होम चली जाऊंगी। वो आईब्रो उचकाकर बोली। आप मेरे साथ भी तो रह सकती हैं, क्योंकि मैंने आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली है। आपकी स्टेप मदर आपको कभी घर में दाखिल होने नहीं देंगी। आपको कह रहा हूँ, आप मेरे साथ रह सकती हैं। ज़रून दोस्ताना अंदाज में बोला। क्यों, मैं आपके साथ किस किस हक से रहूं? जन्नत गुस्से में बोली। हम दोस्तों की तरह भी तो रह सकते हैं। वो नज़र चुराता हुआ बोला। घर देखा वो बाहर जन्नत ने घूर कर देखा, वो बाहर चला गया। मैं आपसे नफरत करती हूँ और मुझे अपनी दोस्त कहते हैं। वो मन ही मन में बोली। सुबह सुबह ज़रून जन्नत के कमरे में आया, जो कि मुंह बनाए बालकनी में खड़ी थी। आप अभी तक ऐसे ही खड़ी हैं? मुझे लगता है आपको रेडी हो जाना चाहिए ताकि मैं आपको स्कूल छोड़कर आऊं। ज़रून ने दोस्ताना अंदाज में कहा। जन्नत हक्का बक्का उसकी मेहरबानियां देखने लगी। ये बंदा क्या चीज़ है, वो सोचने लगी। अच्छे की उम्मीद थी, पर इतना अच्छा होगा जन्नत ने ये नहीं सोचा था। उससे ज़रून में कभी कभी अपना प्रिंस नजर आने लगता। कुछ तो ज़रून में भी था जो जन्नत उसकी तरफ खींची चली जा रही थी, उसकी हर बात मान रही थी। अभी भी उसके लबों पर मुस्कुराहट रेंगी। वैसे ही मुस्कुराती हुई और भी प्यारी लगती हैं। ज़रून ये कहता हुआ बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद जन्नत नीचे आई नाश्ता कर लें। अवैस ने खुली ऑफर की तो जन्नत भी मुस्कुराती हुई वहीं उनके साथ बैठ गई। ज़रून अगर बिल्ली आ गई तो? अवैस धीरे से बोला। जन्नत इर्द गिर्द देखने लगी। क्या हुआ है? ज़रून ने उसे बेचैन देखकर पूछा। वो भाई बिल्ली किधर है? वो इर्द गिर्द देखने लगी। कौन सी बिल्ली? ज़रून हैरान हुआ। भाई, आपने ही तो कहा है बागर बिल्ली आ जाएगी। हद थी मासूमियत की। ज़रून ने घूरकर अवैस की तरफ देखा। लानती कहीं का। ज़रून अवैस को घूरते हुए बुड़बुड़ाया। आपका स्कूल आ गया? ज़रून ने जन्नत को खोया हुआ पाया तो उसे होश में लाते हुए बताया। जी। जन्नत हड़बड़ाकर बाहर निकली। गाड़ी से धीरे धीरे इर्द गिर्द देखती क्लास की तरफ जाने लगी। उसकी निगाहें मन्नत को तलाश कर रही थीं, मगर वो कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। वो क्लास में बैग रखकर स्टाफ रूम में गई। मन्नत इधर भी नहीं थी। जन्नत, तुम इधर क्या कर रही हो? 2 दिनों से क्यों नहीं आ रही थी? तुम्हारी आपी भी नहीं आ रही? जन्नत की दोस्त आकर उसे करनी शुरू हो गई। यार, क्लास में चलो, क्लास शुरू होने वाली है। जन्नत ने उकताहट महसूस करते हुए कहा और दोनों क्लास में आ गई। जो स्टूडेंट्स कल छुट्टी पे थे खड़े हो जाएं। टीचर रजिस्टर बंद करती हुई बोली और बारी बारी सबने छुट्टी की वजह पूछने लगी। जन्नत यही सोचे जा रही थी कि वो क्या जवाब देगी। जन्नत बेटा, आपने क्यों 2 दिन छुट्टी की? आपने तो कभी भी छुट्टी नहीं की। टीचर ने प्यार से पूछा। जन्नत इससे पहले कुछ बोलती जैन पीछे से खड़ा होकर बोला। जैन की बात पर सबने एकदम जन्नत की तरफ देखा। जैन, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? टीचर ने गुस्से में डांटा। मैं सच कह रहा हूँ, ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। अब भी ये अपने घर से नहीं आई। जैन उसकी तरफ देखकर तंजिया अंदाज में मुस्कुराने लगा, जिसे गोया जतला रहा हो कि उसने जन्नत से सारे बदले ले लिए। जन्नत के पास कोई भी जवाब नहीं था उसे देने के लिए। वो क्या कहती? वो नहीं जानती थी ये सब उसके बारे में क्या बोल रहे हैं। उसे किसी से कोई भी सरोकार नहीं था। उससे कमरे की हर चीज घूमती हुई महसूस हुई। अचानक वो गिर गई। जन्नत बेटा, आंखें खोलें। टीचर से स्टाफ रूम में ले आई। जन्नत ने हल्की सी आंखें खोली। इर्द गिर्द देखा तो स्टाफ रूम में कोई भी नहीं था, जो खाली था। जन्नत बेटा, जैन क्लास में क्या कह रहा था? चलें, शाबाश, आप तो बहुत अच्छी बच्ची हैं। मुझे बताएं क्या हुआ है? टीचर ने प्यार से उसके बाल पीछे करते हुए पूछा। जन्नत के आंसू मुसलसल गिरने लगे। मैम, मैं घर से नहीं भागी थी। मैम, मैं नहीं जानती छोटी मामा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। जन्नत रोते हुए टीचर को सारी बात बता दी। जन्नत बेटा, आपने हिम्मत नहीं हारनी। अल्लाह सब बेहतर करेंगे। अल्लाह ताला पे यकीन है ना? मैं अब क्लास अटेंड कर लूँ? आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। टीचर से प्यार करती हुई बाहर चली गई।
जन्नत ने सारा दिन इधर ही गुजार दिया। छुट्टी टाइम अभी वो स्कूल से बाहर ही निकली थी कि सामने ज़रून की गाड़ी नज़र आ गई। बेजार होकर जन्नत गाड़ी में जाकर बैठ गई। क्या हुआ है जन्नत, बहुत परेशान लग रही हैं। ज़रून ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए दोस्ताना अंदाज में पूछा। मैं ठीक हूँ, जन्नत ने बेजारी से जवाब दिया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। ज़रून सामने देखता हुआ बोला। नहीं, मैं ठीक हूँ, वो धीरे से बोली। मैं आपका दोस्त हूँ, बता सकती हैं। ज़रून उसके चेहरे के बिगड़ते जाविये को इग्नोर करते हुए फिर से बोला। एक दूसरे का नाम तक तो मालूम नहीं, बड़ा आया दोस्त बनने वाला। जन्नत ये फ़कत सोच ही सकी। कुछ खाएंगी? ज़रून रेस्टोरेंट देखता हुआ बोला। प्लीज़ हमें जल्दी घर जा सकते हैं, वो भराई हुई आवाज़ में बोली। उसे ज़ैन की बातें याद आ गईं। मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हमें घर ही जाना चाहिए। ज़रून ने उसे मज़ीद परेशान करने से गुरेज करते हुए स्पीड बढ़ा दी और थोड़ी देर में वो घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही जन्नत जल्दी से गाड़ी से निकलकर अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में दाखिल होते ही जन्नत ने जोर से दरवाज़ा बंद किया, बेड पर गिरकर रोने लगी। या अल्लाह, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है? मैं मर क्यों नहीं जाती? क्यों मैं इतनी बड़ी दुनिया में अकेली हूँ? क्यों मेरा कोई अपना नहीं है? काश अल्लाह जी आपने कोई मेरा भी भेजा होता जिसे मेरी फ़िक्र होती, जो मेरी तकलीफ़ में रोता होता, जो मेरा होता, सिर्फ़ मेरा, मुझे आँखों से ओझल ना होने देता। अल्लाह जी, क्यों आपने मुझसे मुझे ये सब कुछ दिखाने के लिए दुनिया में भेजा था? आपने तो मेरी मम्मा, बाबा, आप भी सबको छीन लिया। अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ते, फिर मुझे क्यों तन्हा कर दिया? अल्लाह जी, इस ज़िंदगी से तो मौत ही अच्छी है। इतनी मुश्किल ज़िंदगी को हलाल करके मौत क्यों मुझ जैसों के लिए हराम कर दी गई? वो बालों को मजबूती से मुट्ठियों में जकड़ते हुए फूट-फूट कर रोने लगी। इस वक्त उसके एक कंधे की ज़रूरत थी जहाँ वो सर टिकाकर रोती, मगर नहीं था। वो तन्हा इससे चुप करवाने वाला वो तन्हा थी, इसे चुप करवाने वाला कोई नहीं था। कोई तो होता, कहता तुम रोती हुई अच्छी नहीं लगती। कोई तो होता जो कहता रोया मत करो, मुझे तकलीफ होती है। वो हसरत से खुद से ही बातें करने लगी। काफ़ी देर रोने के बाद वो वॉशरूम में घुस गई। फ्रेश होकर बाहर आई। मौसम काफ़ी बदल चुका था। वो बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। हाय, नीचे आ जाएं। अवैस, जो कि मौसम एंजॉय कर रहा था, जन्नत को देखकर नीचे बुलाने लगा। जन्नत ने पहले तो मना किया, फिर चली गई। आप अकेली बोर नहीं होती? अवैस ने मुस्कुराते हुए हेडफोन उतारकर पूछा। हो जाती हूँ, बंदा हूँ, सीने में दिल है, जन्नत ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। वाह भैया, आप तो बोलती भी हैं, मतलब आपके मुंह में भी जुबान है। अवैस ने हंसते हुए कहा। अच्छा, वैसे इस नाचीज को अवैस कहते हैं। आपका भी घर वालों ने कोई नाम रखा था या मैं ही रख लूं? अवैस मजाहिया अंदाज में बोला। जी, मेरा नाम है, मुझे जन्नत कहते हैं। जन्नत हंसती हुई बोली। वो तो आपको देख के ही लगता है आप जन्नत की कोई हूर हैं। अवैस ने उसकी तरफ देखकर कहा। आपको मजाक करने की आदत है, मेरे सामने ज्यादा कर रहे हैं। जन्नत हंसकर बोली। जी, मैं आपकी तरह जला हुआ नहीं हूँ, माशाल्लाह से खुश रहता हूँ और रखने की कोशिश करता हूँ। अवैस हेडफोन टेबल पर रखता हुआ बोला। गाने सुनती हैं? जी सुनती हूँ। जन्नत इर्द गिर्द देखने लगी। अच्छा, आप गाने सुने, मुझे कुछ ज़रूरी काम से जाना है, ज़रूर रात तक आ जाएगा। अवैस जल्दी में कहता हुआ जाने लगा। जन्नत ने फिर से पुकारा। ये ज़ारून कौन है? वो हैरानगी से बोली। जी, जो आपको लाए हैं, मेरा दोस्त है ज़ारून। अवैस हंसता हुआ चला गया। जन्नत पहले तो गाने सुनती रही, फिर बोर होती उठकर इर्द गिर्द टहलने लगी। जब उसे एक खूबसूरत गुलाब का फूल नजर आया। वाओ, कितना प्यारा है, तोड़ लेती हूँ, पर वो तो बहुत ऊंचा है। वो फूल के पास गई और उछलकर तोड़ने की बेकार कोशिश करने लगी। हाय अल्लाह, ये तो टूट ही नहीं रहा। जन्नत थक कर बोली और इर्द गिर्द नजरें दोहराई। इस स्टूल पर चढ़कर तोड़ लेती हूँ। जन्नत ने स्टूल उठाकर वहां रखा और उस पर चढ़कर फूल तोड़ने लगी। अचानक उसका पाँव स्टूल से फिसल गया और वो किसी की बाहों में झूल गई। जन्नत ने जोर से आंखें मींच लीं। ज़ारून उसके चेहरे पर देखने लगा। बंद आंखें, पेशानी पर बिखरे बाल, दाएं रुखसार पर काला तिल, छोटी सी नाक, घनी पलकें, साफ रंगत ज़ारून के सीधा दिल को जा लगी। जन्नत ने धीरे से आंखें खोली, निगाहें सीधा ज़रून की निगाहों से टकराईं। अगर आपको कुछ हो जाता तो? वो गंभीर लहजे में बोला। आप मुझे कुछ होने दे सकते हैं? जन्नत के मुंह से बेधड़क निकला। ज़ारून, पीछे खड़ी परीशे चिल्लाई। ज़ारून ने जल्दी से जन्नत को सीधा किया। जन्नत भागकर अंदर चली गई। परीशे, तुम?
ज़ारून अचानक उससे सामने देखकर घबरा गया। ये लड़की कौन थी? परी इससे खूनख्वार नज़रों से घूरती हुई बोली, "यह अवैस की कज़न है।" ज़ारून ने सफाई से झूठ बोला, "ये क्या करने आई है? अगर ये अवैस की कज़न है तो तुम्हारी बाहों में क्या कर रही थी?" परी जांचती नज़रों से उसे देखने लगी। "यार, फूल तोड़ने की कोशिश करने में गिर गई थी तो पकड़ लिया। इतना इशू क्यों बना रही हो?" ज़ारून जिद होकर बोला, "ज़ारून, मैं इशू नहीं बना रही, बस मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ।" वो मुंह बनाती हुई बोली, "अच्छा चलो शॉपिंग पर चलते हैं।" ज़ारून उसको उससे पीछा छुड़ाने की एक तरकीब सूझी। जन्नत पेन किलर काफ़ी देर ढूंढती रही मगर उसे कहीं भी नहीं मिली। वो नीचे किचन में आ गई, फ्रिज खोलकर दूध निकालकर चाय चूल्हे पर रखी। कितनी प्यारी किचन है। जन्नत वहीं पड़ी चेयर पर बैठ गई। ज़ारून, अच्छा नाम है। जन्नत ज़ारून का नाम लेती हुई मुस्कुराई। वो अपनी सोचों में इस तरह गुम हुई कि उसे इर्द गिर्द का होश ही ना रहा। अवैस किचन में दाखिल हुआ। जन्नत को गहरी सोच में डूबा देखकर उसके दिमाग में शरारत आई। उसने पीछे से एकदम जन्नत को डराया। जन्नत अचानक उसके भूं करने पर डर गई। अवैस हंस हंस कर पागल होने लगा। सॉरी सॉरी यार, मुझे नहीं पता था तुम इतनी जल्दी डर जाओगी। ज़ारून नज़र नहीं आ रहा, किधर है? मैं तो वापस भी आ गया हूँ। अवैस अपनी हंसी कंट्रोल करता हुआ पूछने लगा। इतने में परीशा और ज़ारून भी किचन में ही आ गए। ओह, तुम दोनों क्यों इतना हंस रहे हो? परीशा तंजिया अंदाज में बोली। वैसे अवैस, तुम्हारी कज़न काफ़ी तेज़ लगती है। परीशा जन्नत की तरफ देखकर नाक चिढ़ाती हुई बोली। मेरी कज़न? अवैस हैरानगी से बोला। अवैस, जन्नत तुम्हारी कज़न है। ज़ारून अवैस को आंखें दिखाता हुआ बोला। यार, मेरी कज़न? अवैस ना समझी से बोला। बेवकूफ़, मैंने परीक्षा को बता दिया है तुम दोनों कज़न हो, अब मान भी जाओ। ज़ारून ने चबा चबा कर अल्फाज बोले। हाँ परीक्षा, हम दोनों कज़न हैं, हमारे घर वालों ने हमारा रिश्ता तय कर दिया है। अवैस हंसता हुआ बोला। ज़ारून ने अवैस की तरफ गुस्से से देखा। जन्नत वहाँ से चली गई। अवैस, तुम अपनी कज़न मंगेतर जो भी है उसे ज़ारून से ज़रा दूर रखो तो बेहतर होगा। परीक्षा ये कहती हुई बाहर चली गई। क्या हुआ है? तो मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? अवैस ने अनजान बनते हुए पूछा। ज़ारून ने जोर से अवैस के पेट में मुक्का रसीद किया। यार, एक तो तुझे मैंने बचाया, ऊपर से तो मुझे ही मार रहा है। रुक, मैं परी को बताता हूँ। अवैस मसनूई गुस्सा दिखाकर बोला। मैंने तुझे कज़न कहने को कहा था, तूने मंगेतर क्यों कहा? ज़ारून ने गुस्से में पूछा। ओ यार, गलती से मिस्टेक हो गई। अवैस ने कहा। अच्छा, अब मेरी जन्नत के लिए तू चाय बना और अंडा भी बॉईल कर। ज़ारून हुक्माना अंदाज में बोला। क्यों? जन्नत तेरी है, काम क्यों मैं करूं? अवैस कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। अगर तुझ जैसा दोस्त हो तो दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़ारून दिखी अंदाज में बोला। अब ब्लैकमेल मत करो, मैंने नहीं करके देना तुझे काम। अब मैं भी डीठ इब्ने डीठ बनकर दिखाऊंगा। अवैस मोबाइल में लग गया। अच्छा ठीक है, ना मान मेरी बात, मुझे दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं है। घर में ही मैंने दुश्मन पाल रखा है। चल जा, तुझ जैसा दोस्त नहीं चाहिए जो थोड़ी सी मदद ना कर सके। खुदा मुझे तुझसे अच्छा दोस्त देगा, बल्कि जन्नत दे दी है। ज़रूर नॉन स्टॉप बोलने लगा। तू ना बहुत बड़ा कंजर है। अवैस गुस्से में कहता हुआ उठ गया। कितने खूबसूरत हैं ये सितारे, ये चांद, हर चीज़ खुदा ने कितनी अच्छी बनाई है। काश कि मेरी किस्मत भी अच्छी होती। वो आसमान की तरफ देखती हुई खुद से बातें करने लगी। अपनी किस्मत को बुरा नहीं कहते, गुनाह मिलता है। ज़रून रूम में दाखिल होता हुआ जन्नत ने एकदम मुड़कर पीछे देखा। आप इस वक्त? जन्नत ने फीका सा मुस्कुराते हुए पूछा। जी, आप चाय जलने के लिए चूल्हे पर रखाई थी तो सोचा मैं आपको दे दूं। देकर ही आऊं, आप तो बड़ी गैर जिम्मेदार हैं। ज़रून ने उसे अच्छा खासा शर्मिंदा कर दिया। वो मुझे याद ही नहीं रहा था, वो आप ही आ गई थी तो आप बातें करने लग गए। मैं वापस कमरे में आ गई। जन्नत अपने आने की वजह बताने लगी। अच्छा, कल शॉपिंग पर चलेंगे। ज़रून दोस्ताना अंदाज में बोला। जी, मुझे शॉपिंग नहीं करनी। जन्नत ने सफाई से इनकार किया। आपके स्कूल में फंक्शन है कुछ दिनों तक, तो मैंने भी तो जाना ही होगा, और उसके लिए आपको नई ड्रेस की भी ज़रूरत है। ज़रून सीने पर बाजू बांधकर बोला। आपको कैसे पता मेरे स्कूल में फंक्शन है? मेरा मतलब, मैंने तो आपको बताया ही नहीं। फिर? जन्नत हैरानगी से बोली। आपके स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, फैमिली फ्रेंड है, तो उस वजह से काफ़ी गहरे ताल्लुकात हैं, तो उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया है। ज़ारून ये कहता हुआ बाहर चला गया। ज़ारून ये सब क्यों मेरे लिए कर रहे हैं? या अल्लाह, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही, मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हैं?
तो आप ही से ही मैंने तो आप ही से ही सुना है कि सिर्फ़ आपका ख़्याल वही लोग रख सकते हैं जो आपको चाहते हों, आपसे मोहब्बत करते हों। ज़रून क्यों मुझसे मोहब्बत करेंगे? उनकी तो अपनी मंगनी हुई हुई है। ज़रून की अपनी मंगेतर मुझसे प्यारी है। फिर ये मेरा इतना ख़्याल क्यों रखते हैं? मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों इस बारे में इतना सोच रही हूँ? और और मैं किस हक़ से उनके साथ रहती हूँ? ना मेरा कोई उनसे रिश्ता है, ना मेरे कुछ भी तो नहीं लगते। क्या मेरे बारे में सोचेंगे लोग? और ज़रून मेरे बारे में क्या सोचेंगे? उन्होंने मुझे हाथ पकड़ाया और मैंने उनका बाजू ही पकड़ लिया। वो खुद से बातें करने लगी हुई थी जब अचानक लाइट चली गई। जन्नत डर कर बेड पर बैठ गई। अभी ही उस लाइट को जाना था। वो डरने लगी जब बाहर बादल भी गरजने लगे। अब उसे सही मानों में डर लगने लगा। डर रही हैं? ज़रून कैंडल लाइट की रोशनी में उसके तने हुए अज़ा देखता हुआ बोला। जन्नत का बस नहीं चल रहा था कि अभी ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। उसे ज़रून पर उसके अल्फाज पर शदीद गुस्सा आने लगा। जन्नत, ज़रून ने इंतहाई प्यार से पुकारा। जन्नत, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आपको अपनी शरीके हयात बनाना चाहता हूँ। आपको दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। ज़रून हल्की हल्की रोशनी में उसकी आंखों में देखने लगा। वो आपसे क्या करूँ? मुझे वक़्त चाहिए। वो हड़बड़ाकर बोलने लगी। उसकी गालों पर आँसू भीगने लगे। जन्नत, मैं नहीं चाहता लोग आपके बारे में और मेरे बारे में गलत बातें बनाएँ। ज़रून जन्नत से 2 कदम पीछे हो गया। अचानक लाइट आ गई और बाहर बारिश शुरू हो गई। जन्नत वहाँ से भागती हुई सीढ़ियाँ तेज़ी से में चढ़ती हुई अपने रूम में आ गई और दरवाज़ा बंद करके बेड पर गिरने वाले अंदाज में लेट गई। तकिए में मुँह छुपाते हुए रोने लगी। बाहर आसमान बरस रहा था और अंदर जन्नत की आँखें। या अल्लाह! ये मुझे कैसे इम्तिहान में डाल दिया? मैं कहाँ फँस गई हूँ? कौन है मेरा जो मुझे बताए मैं क्या करूँ? ये मैं क्या समझूँ ज़रून की मोहब्बत, हमदर्दी? ज़रून, आप क्या हो? मैं आपको गलत भी नहीं समझ सकती। आपकी तो मंगनी भी हुई हुई है। अब मैं क्या करूँ? वो बिना आवाज़ के रोने लगी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या फ़ैसला करे। मन्नत सुबह-सुबह नाश्ता बनाकर बेडरूम में दाखिल हुई। उसामा, उठ जाएँ। मन्नत ने साइड टेबल पर नाश्ते वाली ट्रे रखते हुए कहा। उसामा अंगड़ाइयाँ लेता हुआ उठा और आँखें मसलने लगा। मन्नत, तुमसे एक बात पूछूँ? वो शर्ट डालता हुआ सवालिया अंदाज में बोला। जी, पूछें। वो खिड़कियों के आगे से पर्दे हटाती हुई बोली। मन्नत, तुम्हें जन्नत की याद नहीं आती? उसामा ने धीरे से पूछा। नहीं, मैं उस पर फ़ातिहा पढ़ चुकी हूँ। वो अपनी लाइफ़ में खुश हो गई। मिल गया होगा उसे अपने ख्वाबों का शहज़ादा। वो नफ़रत भरे अंदाज में बोली। यार जन्नत, ऐसी मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगती। वो तो बहुत मासूम लगती थी। उसामा जन्नत की तरफदारी करता हुआ बोला। आप नाश्ता कर लें, ठंडा हो रहा है। मन्नत वहाँ से उठ गई। उसामा को उस वक्त खुद पर शदीद गुस्सा आने लगा। पता नहीं वो मासूम नन्ही सी परी कहाँ होगी। पता नहीं जिंदा भी होगी या मर गई होगी। मैं तो उसे अपनी छोटी बहन मानता था। क्यों मैंने जीनत के कहने पर उसे उस बेचारी को तंग किया? उसामा अपनी ही सोचों में गुम था। उसामा किधर गुम है? मन्नत उसके पास बैठती हुई बोली। कहीं नहीं, तुम भी नाश्ता करो। उसामा मुस्कुराता हुआ बोला। नहीं, आप कर लें, मैं बाद में कर लूँगी। जन्नत डेस्क पर बैठी दांतों में पेंसिल दबाए गहरी सोच में डूबी हुई थी। ये वक्त असेंबली का था। क्लास में जन्नत के अलावा कोई भी नहीं था। उफ, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रही। मैं क्या करूं? अगर मैं ज़रून से शादी कर लूं तो उनकी मंगेतर का क्या होगा? नहीं, अगर मैं शादी ना करूं तो नहीं नहीं, फिर तो ज़रून से दूर चली जाऊंगी। उफ जन्नत, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों नहीं उससे दूर जा सकती? वो क्या लगता है तुम्हारा? जन्नत अपनी सोच में मगन थी जब जैन ने उसे पुकारा। हाय मिस ब्यूटी, क्या सोच रही हैं? मिस ब्यूटी, मैं आपकी ब्यूटी मिस नहीं करना चाहता। जैन शैतानी अंदाज में मुस्कुराता हुआ बोला। जन्नत ने दांत पीसते हुए उसको घूरकर बुक डेस्क पर जोर से मारती हुई बाहर जाने लगी। जैन ने उसका बाजू पकड़ लिया। किधर जा रही हो जाना? सीधा बताओ, मेरी वजह से असेंबली में नहीं गई? हाय, मेरा जैन आएगा, मेरा हाथ पकड़ेगा, फिर मैं उसके साथ। जैन की बात अधूरी ही थी। जन्नत ने जोरदार तमाचा उसके मुंह पर घसीट किया। अपनी परेशानी से बाल हटाती हुई बाहर चली गई। जैन गाल पर हाथ रखे उसकी पुश्त को घूरने लगा। जन्नत मैडम, तुम्हें तो मैं बर्बाद करके रख दूंगा। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। बहुत अकड़ आ गई है ना तुम में? तुम्हारी अकड़ मैं तोड़ूंगा, तबाह कर दूंगा। जैन एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोला। जानी किसको तबाह करना है? अब हमें तो तुम कर ही चुके हो। लड़ेब उसके सामने आते हुए फरेबी अंदाज में बोली। ये जो जन्नत है ना, उसे तबाह करना है। वो गुस्से में बोला। इससे तो मुझे भी बहुत से बदले लेने हैं।
वो ज़ैन की टाई सेट करती हुई बोली, लरेब, इससे पहले मेरा मूड किसी और तरफ चला जाए, चलो बाहर। ज़ैन उसकी बाजू पकड़कर बाहर ले गया। असेंबली के बाद सारे क्लास में खुशखबरियों में मसरूफ थे, जबकि जन्नत परेशान बैठी थी। ये वो जन्नत थी जो स्कूल में कोई भी फंक्शन होता सबसे आगे होती थी पार्टिसिपेट करने के लिए, मगर अब उससे कोई होश ही नहीं थी। जाने कितनी उलझनों ने उसे घेर लिया था। जन्नत यार, हम दोनों सेलेक्ट हो गई हैं, आमना ने मुस्कुराते हुए बताया, मगर जन्नत की आंखों से निकलने वाले आंसू ने उसे चुप करवा दिया। जन्नत यार, प्लीज़ रोना बंद करो, तुम ऐसे रोगी तो ज़ैन के लगाए हुए इल्ज़ामात सच साबित हो जाएंगे। आमना उसके साथ बैठती हुई बोली, आमना यार, मैं घर से नहीं भागी थी, मुझे घर से निकाला गया है। जन्नत रोती हुई बोली, मतलब जन्नत तुम घर से नहीं आती? जन्नत तुम किधर से आती हो? अगर घर से नहीं आती किसके साथ रहती हो? आमना तजस्सुस भरे लहजे में बोली, मैं खुद भी नहीं जानती कौन है वो, फरिश्ता है या शैतान है। जन्नत, तुम्हें टीचर बुला रही हैं स्टाफ रूम में, एक लड़की ने जन्नत को इत्तला दी। जन्नत आंसू साफ करती हुई क्लासरूम से बाहर गई। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती स्टाफ रूम में आ गई। जन्नत बेटा, इधर आकर बैठ जाएं। स्टाफ रूम खाली था। मैम ने उसे अपने पास बुलाया। जन्नत बेटा, अगर आप उन बॉयज़ के साथ नहीं रह सकती तो मैं आपके लिए हॉस्टल का बंदोबस्त करती हूँ, सारा खर्चा आपका उठाऊंगी। मैम ने प्यार से कहा, मैम वो जो लड़का मुझे साथ ले गया था वो मुझसे शादी करना चाहता है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं उसे क्या जवाब दूँ। वो कहता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, अपनी शरीके हयात बनाना चाहता है, पर मैम वो तो मुझसे एज में भी बहुत बड़े हैं। जन्नत परेशानी से बताने लगी, जन्नत बेटा, मुझे वो एक अच्छा लड़का लगता है, आप उससे शादी कर लें। आप कब तक यूँ तन्हा रहेंगी? इस ज़माने में अपने भी इतने अच्छे नहीं होते, वो आप पे ट्रस्ट भी करता है, उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? मैम, तंजीला ने उसे समझाया, और उसने ना आपको कभी गंदी निगाह से देखा है, और लोग भी आपके बारे में कुछ गलत नहीं कहेंगे। वो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है, तभी तो उसने आपसे शादी की ख्वाहिश की है। ये दुनिया ऐसी है, किसी लड़की को तन्हा नहीं जीने देती। मैम ने प्यार से उसके सर पर बोसा दिया। चलो अब चलो, शाबाश, क्लास में मैं क्लास अटेंड कर लूँ और उससे शादी कर लो। और आपने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है? मैम उसका ध्यान हटाती हुई बोली, मैम मैंने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया। जन्नत अपनी उंगलियों की तरफ देखती हुई बोली, आप तो इतनी प्यारी मॉडलिंग करती हैं, मॉडलिंग में हिस्सा ले लें। आप तो इतनी प्यारी मॉडलिंग में हिस्सा ले लें। ओके मैम, जन्नत मुस्कुराई। उफ, ये ज़ारून अभी तक क्यों नहीं आए? इतनी देर क्यों कर दी आज? जन्नत कलाई में डाली घड़ी पर निगाहें गाड़े खड़ी थी जब उसके सामने ज़रून की गाड़ी आकर रुकी। जन्नत मुस्कुराती हुई फ्रंट डोर खोलकर अंदर बैठ गई। आज तो बड़ी खुश लग रही हैं, खैर है? ज़रून ने उसे दोस्ताना अंदाज में पूछते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। ज़रून, ये हम कहाँ जा रहे हैं? जन्नत ने गाड़ी दूसरे रास्ते पर जाती देख परेशान होकर पूछा। उफ़ जन्नत, आप भी कितना डरती हैं, माल जा रहे हैं। बताया तो था अब शॉपिंग करनी है, ज़रू ने हंसते हुए कहा। जन्नत की तो गोया सांस में सांस आई। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बड़े से मॉल के सामने रुकी। दोनों मॉल में दाखिल हुए। ज़रू ने जन्नत के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद ली, जो जो उसने जन्नत के लिए पसंद आई। ज़रून, आप इतनी चीज़ें क्यों ले रहे हैं? जन्नत ने सख्त लहजे में कहा। जन्नत प्लीज़, आप परेशान मत हों, ज़रून ने प्यार से कहा। जन्नत लॉन में बैठी पढ़ने में मसरूफ़ थी, दांतों में पेंसिल दबाते हुए कोई सवाल समझ रही थी। क्या हो रहा है? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, मैं सॉल्व कर देता हूँ। ज़रून ने मुस्कुराते हुए पूछा। ज़रून, ये सवाल मुझे समझ नहीं आ रही, कितना मुश्किल है? जन्नत मुंह बनाती हुई बोली, इधर दें, मैं समझा दूँ। ज़रून उसके साथ वाली चेयर पर बैठकर बोला। ज़रून ने शर्मिंदगी से पूछा, क्योंकि वो उससे भी नहीं आता था। उसकी कोई बुक है? मैं लेके आती हूँ बुक। जन्नत ये कहकर अंदर चली गई। ज़रून उसकी बुक खोलकर देखने लगा। जन्नत फ़ारूक। ज़रून उसका नाम ज़ेरे लब बड़बड़ाया। वो उसकी यूं ही बुक खोले देख रहा था जब अंदर से एक तस्वीर गिरी। ज़रून उठाकर देखने लगा। उसके पीछे लव यू मामा लिखा हुआ था। जन्नत को आता देखकर ज़रून ने जल्दी से तस्वीर बुक में रख दी। ये बुक है, अब जल्दी से समझा दें। जन्नत चेयर पर बैठी हुई बोली। ज़रून बुक से सवाल ढूंढने लगा, मगर उसे कहीं भी ना मिला। ये रहा, जन्नत ने जल्दी से बताया। उसका हाथ ज़रून के हाथ पर था। जन्नत ने जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया। ओह, ये हमारे सामने इतना इजी सवाल था, हमें मिल ही नहीं रहा था। ज़रून उसका ध्यान इधर करता हुआ बोला। मुस्कुराती हुई जन्नत ज़रून की जान निकाल रही थी। आपने शादी के बारे में क्या सोचा? ज़रून ने बेसाख्ता पूछ लिया। मुझे आपके साथ शादी करने में कोई एतराज़ नहीं है, पर मैं अभी
صرف میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد میں اپنی اسٹڈی جاری رکھنا چاہتی ہوں۔ جنت یہ کہہ کر رکی نہیں، زرون کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتا تھا جنت کبھی انکار نہیں کرے گی۔ زرون، یہ جنت کیا کہہ رہی تھی؟ تم نے پری کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ کیسے برداشت کرے گی؟ اور تم نے کشف کو بھی نہیں بتایا؟ اویس نے دھیرے سے پوچھا۔ یار کشف کا کیا ہے، اس نے کیا کہنا ہے؟ اور پری کو میں ہینڈل کر لوں گا۔ میں نے کون سا ابھی ہی پری کو بتا دوں گا۔ اور اب ذرا میں آفس کا چکر لگا کر آتا ہوں۔ بھابھی کا خیال رکھنا۔ جنت میں بور ہو رہا تھا تو سوچا تمہارے پاس آ کر لوڈو ہی کھیل لوں، اور تو مجھے کوئی کام نہیں ہے۔ آپ لوڈو کھیلنا پسند کریں گی؟ اویس نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ سوری بھائی، میں پڑھنے میں بیزی ہوں، جنت نے معذرت کی۔ او، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ اویس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں 10th کلاس میں ہوں، جنت نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ گڈ، اور آپ کی ایج کیا ہے؟ اویس نے تجسس سے پوچھا۔ میں 15 سال کی ہوں، جنت نے بک سے نگاہیں ہٹا کر کہا۔ جنت، آپ مجھے اپنا بھائی سمجھ سکتی ہیں، اویس نے پیار سے کہا۔ ویسے مجھے بھی بہت شوق تھا میرا کوئی بھائی ہوتا، مگر سگا وہی تو سگا ہی ہوتا ہے۔ اگر میری ماما یا میرا بھائی ہوتا تو آج میں یوں دربدر نہ ہوتی۔ بات کرتے ہوئے جنت کی آنکھوں میں نمی تیر آئی۔ جنت، یوں ایموشنل مت ہوا کریں، آپ مسکراتی ہوئی پیاری لگتی ہیں، اویس نے پیار سے کہا۔ آپ بہت اچھے ہیں، جنت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جنت، میں زرون سے کم ہی اچھا ہوں، تم جانتی ہو زرون بہت اکیلا ہے اور اتنا ہی وہ اچھا ہے۔ میں جانتا ہوں تم بہت کنفیوز ہو، پتہ نہیں زرون کیسا ہوگا، وہ بہت اچھا انسان ہے، تم کبھی اسے چھوڑ کر مت جانا، وہ تم سے محبت کرنے لگا ہے۔ تم کبھی اس کی محبت پہ شک نہ کرنا، اویس سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا۔ جنت نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اویس باہر چلا گیا۔ جنت یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ زرون کمرے میں آیا، ایک شاپر رکھ کر چلا گیا۔ جنت نے حیرانگی سے شاپر کی طرف دیکھا۔ جنت نے بیڈ سے شاپر اٹھا کر دیکھا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ کتنا خیال ہے اس بندے کو میرا۔ جنت شاپر کے اندر بچوں والی چیزیں دیکھ کر مسکرانے لگی۔ کریم کیک میرا فیوریٹ۔ جنت نے مسکراتے ہوئے شاپر میں بہت سی کھانے والی چیزیں تھیں۔ جنت مزے سے چیزیں نکال کر کھانے لگی۔ کیک کھاتے ہوئے کریم اس کی گال پر لگ گئی۔ زرون، آپ کتنے اچھے ہیں، بالکل میرے خوابوں میں آنے والے شہزادے جیسے، کتنا میرا خیال رکھتے ہیں، کاش آپ صرف میرے ہی رہیں، کبھی ہم دونوں کے درمیان کوئی بھی نہ آئے، ہم ساتھ ساتھ رہیں۔ جنت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتی ہوئی مسکرانے لگی۔ جنت نے پانی والا جگ دیکھا تو وہ خالی تھا۔ اب تو رات بھی ہو گئی ہے، کیسے باہر جاؤں، پتہ نہیں کوئی جاگ بھی رہا ہوگا کہ سب سو گئے۔ جنت بڑبڑاتی ہوئی جگ اٹھاتے ہوئے نیچے آئی۔ کچن کی تو لائٹ جل رہی ہے، شاید کوئی جاگ رہا ہے، جنت خود سے کہتی کچن میں آئی۔ زرون کافی بنانے میں مصروف تھا۔ جنت نے خاموشی سے فریج کا دروازہ کھول کر پانی والی بوتل نکال کر جگ میں پانی ڈالا۔ زرون کی نظر جنت پر گئی، وہ بے ساختہ ہنسنے لگا۔ آپ مجھ پر ہنس کیوں رہے ہیں؟ جنت اس کے یوں ہنسنے پر گھبرا گئی۔ آپ نے کیک کھایا ہے؟ زرون نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جنت نے اس بات میں سر ہلایا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں نے تو نہیں کھایا۔ جنت نے ڈٹائی سے جھوٹ بولا۔ زرون اس کے قریب ہوا اور اس کی گال پر انگوٹھا رگڑا۔ جنت کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کی ٹانگوں سے جان ہی نکال لی ہو۔ زرون نے ہاتھ پر لگی کریم دکھائی، مگر جنت تو یوں ہی ساکت کھڑی رہی۔ تو یہ کیا ہے پاگل؟ اس کے ہاتھ سے جگ گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اچانک جگ گرنے کی وجہ سے زرون ڈر گیا۔ زرون پیچھے ہونے لگا، پانی کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسلا، جبکہ ٹھیک اسی وقت جنت باہر جانے لگی اور اس کا بھی پاؤں پھسلا۔ اس نے جلدی سے زرون کو پکڑا اور سیدھی زرون پر جا گری۔ کان زرون کی بازو میں لگ گیا۔ وائٹ شرٹ کا بازو دیکھتے ہی دیکھتے لال ہو گیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ جنت جلدی سے سیدھی ہوئی اور گھبراتی ہوئی زرون کا بازو دیکھنے لگی۔ جنت، یہ کانچ نکال دیں۔ زرون نے بازو اس کے سامنے کیا۔ نہیں، آپ کو درد ہوگا، وہ ڈرتی ہوئی بولی۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ جنت، مجھے ایسے درد ہو رہا ہے، پلیز نکال دیں، زرون نے التجائیہ انداز میں کہا۔ جنت نے آنکھیں بند کر کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کانچ نکال دیا، مگر وہ خود بری طرح کانپنے لگی۔ زرون نے اس کے گرتے آنسو دیکھ کر پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو پین ہو رہی ہے؟ وہ اداسی سے بولی۔ زرون نے اس بات میں سر ہلایا۔ سوری، میری وجہ سے ہوا ہے، جنت یہ کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ زرون کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ صبح صبح کافی خوشگوار موسم بنا ہوا تھا۔ جنت کمرے سے باہر نکلی۔ آج اتوار تھا۔ جنت لاؤنج میں آئی، سامنے ہی زرون صوفے پر بیٹھا ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کی نظر جنت پر پڑی، اس نے جلدی سے ٹی وی بند کیا۔ اور آپ کا بازو کیسا ہے؟ رات کو پین تو نہیں ہوئی تھی؟ آپ نے ہلدی والا دودھ پیا ہے، اس سے آپ کو پین نہیں ہوگی۔
जन्नत ने खड़े खड़े सारे सवाल पूछ लिए। जन्नत, आप मुझे बस ये बता दें, आप मुझसे निकाह कब करेंगी? ज़रून उसके सामने खड़ा हो गया। जब आपकी मर्जी हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि बाकी की ज़िंदगी तो मुझे आपके इशारों पर गुजारनी है। जन्नत ने उससे निगाहें मिलाए बगैर जवाब दिया। जन्नत, ये आपने कैसी बात की है? आई प्रॉमिस, मैं आप पर कभी भी कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा। जिनसे मोहब्बत की जाती है उन पर पाबंदियां आयद नहीं की जाती। ज़ारून ने नरम लहजे में कहा, जानती हूँ मुझे आपसे तब तक मोहब्बत नहीं होगी जब तक आपसे निकाह ना कर लूँ, और आपकी मोहब्बत में पड़ना नहीं चाहती जब तक आप मेरे नामहरम हैं। मैं नहीं जानती मुझे कितना गुनाह मिला होगा जो मैं आपके साथ यूँ रहती रही हूँ। मैं अब आपके साथ बिना निकाह किए मज़ीद नहीं रह सकती। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कब मुझसे निकाह करेंगे। जन्नत धीरे से जानने लगी, मैं आज शाम ही आपसे निकाह करना चाहता हूँ। ज़रून ने उसका बाजू पकड़ा। जन्नत मुड़ी। हाँ जन्नत, जन्नत, हाँ जन्नत, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा हम यूं ही रह रहे हैं। मैं बस आज शाम ही आपसे निकाह कर लूँगा। बस आप रेडी होकर आएँ, हम निकाह की शॉपिंग करके लाते हैं। ज़रून ने उसका बाजू छोड़ दिया। जन्नत उसकी निगाहों में झांकने लगी। ये सच कह रहा है? क्या हुआ है? मैंने क्या कह दिया आपको? मुझसे निकाह नहीं करना? ज़रून ने उसके सामने चुटकी बजाई। वो दुनिया में वापस लौटी। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। जन्नत घबरा गई। जन्नत, अगर आप चाहती हैं तो मैं आपके घर वालों को मना कर ला सकता हूँ। ज़रून अपनायत भरे लहजे में मुखातिब हुआ। नहीं, आप रहने दें। जन्नत अपनी मुठ्ठियाँ भींचकर बोली। जन्नत अपने कमरे में शीशे के सामने बैठी खुद को देखने लगी। काफ़ी रात हो गई थी। देखो जन्नत, आज तो तुम्हें समझ आ ही गई होगी। लोग क्यों कहते हैं कि ख्वाब नहीं देखने चाहिए? लोग क्यों कहते हैं कि ख्वाब बहुत तकलीफ देते हैं? जन्नत, काश तुमने इन लोगों की बातों पर यकीन किया होता, कोई ख्वाब ना सजाया होता। क्यों क्यों तुमने जन्नत इतने ख्वाब सजाए थे? ना सजाती इतने ख्वाब, आज इतनी तकलीफ ना होती टूटते वक्त। तुमने तो जन्नत यही ख्वाब सजाया था कि तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा तुम्हें बहुत ही धूमधाम से लेकर जाएगा। तुम अपने घर से रुखसत होगी, अपनी किस्मत देखो। जन्नत शीशे में अपने अक्स से बातें करने लगी। मैं कैसे ज़रून आपकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई, मैं तो खुद भी नहीं जानती, पर अब आपके बिना नहीं जी सकूंगी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ज़रून कमरे में दाखिल हुआ। जन्नत ने जल्दी से आंसू साफ किए। आप इतनी रात को? जन्नत ने नॉर्मल अंदाज में पूछा। क्यों मैं नहीं आ सकता? अब तो ये मेरी वाइफ का रूम है, ज़रून ने दोस्ताना अंदाज में कहा। जन्नत के लबों पर मुस्कुराहट रेंगी। जन्नत, मुझे लगा आपको इस वक्त एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत होगी। मैं आपके पास इस वक्त एक अच्छे दोस्त की हैसियत से आया हूँ। अगर आपको मुझसे कोई भी बात शेयर करनी है तो आप बिला झिझक कर सकती हैं। जन्नत, एक और बात, कभी ज़िंदगी में मुझे गलत मत समझना। उस दिन जन्नत मेरे जज़्बात का कत्ल हो जाएगा जिस दिन आपने मुझ पर शक किया। आप पर तो मुझे खुद से भी ज़्यादा यकीन है। बस आप वादा करें कि ज़िंदगी भर मेरा साथ देंगी, किसी मोड़ पर मुझे तन्हा नहीं छोड़ेंगी। ज़रून ने नरमी से कहते हुए उसके सामने हाथ किया। जन्नत काफ़ी देर उसके हाथ को देखती रही, फिर लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट सजाते हुए उसके हाथों पर हाथ रख दिया। ज़रून, मैं आपका साथ हमेशा दूंगी। मैं आपको कहाँ छोड़ कर जा सकती हूँ? मेरा इस दुनिया में आपके अलावा है ही कौन? जन्नत ने दोनों हाथों में हाथ उसका पकड़ लिया। बस आपी की और मामा की बहुत याद आती है। मुझे बस सबसे ज़्यादा इस बात का दुख है कि मेरी आपी को मुझ पर यकीन नहीं था। ज़रून, मैं चाहती हूँ मैं पहले वाली जन्नत बन जाऊँ, पर मैं नहीं बन सकती। जन्नत ने ज़रून के हाथों पर सर टिका लिया और रोने लगी। जन्नत, प्लीज़ मत रोएं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा आपको यूँ रोता देखकर। परेशानी से जन्नत को अपने साथ लगा लिया। जन्नत धीरे से उससे अलग हुई। ज़रून उसके आंसू साफ करता हुआ बाहर चला गया। ओ जनाब, तू किचन में क्या कर रहा है? नीचे तेरी बेगम स्कूल जाने के लिए तैयार खड़ी है। अवैस ने किचन में दाखिल होते हुए कहा। जन्नत तैयार खड़ी है, नाश्ता नहीं करना? जन्नत ने ज़रून ने ट्रे में कॉफ़ी रखते हुए कहा। पूछा था, कह रही थी मुझे देर हो रही है, और बंदा तुझसे पूछे तूने तो निकाह के छवाड़े क्यों नहीं खिलाए? ज़रा अभी तो अपनी बीवी को स्कूल ले जा, बाद में मैं तुझसे दो दो हाथ करूँगा। अवैस ने ज़रून को बाहर की तरफ धक्का दिया। ज़रून हंसता हुआ बाहर आया किचन से। ज़रून, प्लीज़ जल्दी करें, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जन्नत बैग की जिप बंद करने लगी। ज़रून ने सोफे से कोट उठाकर डाला। चलें। ज़रून जल्दी से बाहर जाने लगा। जन्नत वहीं खड़ी रही। ज़रून ने हंसते हुए जन्नत का हाथ पकड़कर बाहर ले गया। गाड़ी में बैठे तक मुस्कुराती रही। जन्नत बहुत प्यारी लग रही हैं यूनिफॉर्म में। ज़रून ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा। स्कूल स्कूल के सामने गाड़ी रुकी। ज़रून ने जन्नत
اگر زرون نے اسے پیسے دیے، جنت اگر آپ نے کوئی چیز لینی ہو تو کینٹین سے لے لینا۔ زرون نے یہ کہہ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ جنت ابھی دروازے میں ہی انٹر ہوئی تھی کہ اس کی ٹکر زین سے ہو گئی۔ زین کچھ بولنے ہی والا تھا کہ جنت آگے بڑھ گئی۔ زین اس کی پشت کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ جنت نے کلاس میں آ کر بیگ رکھا، تبھی آمنہ بھی آ گئی۔ اوئے ہوئے میڈم صاحبہ، آج تو مسکرا رہی ہیں، کیا بات ہے؟ ہمیں بھی بتائیں ذرا۔ آمنہ نے اس کے کندھے پر مسکراتے ہوئے منہ کا رسید کیا۔ آمنہ، ایک بات بتانی ہے، ذرا پیچھے والے گراؤنڈ میں چلتے ہیں۔ جنت نے مسکراتے ہوئے کہا، شکر ہے تمہیں بھی پیچھے والے گراؤنڈ کا خیال آیا۔ آمنہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ دونوں کلاس سے باہر نکلی۔ سامنے سے آتی ہوئی لڑیب نے ان کا راستہ روک کر جنت کے آگے ہاتھ لہرایا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جنت نے بھویں اچکا کر کہا، یہ دیکھو۔ وہ اپنی رنگ دکھاتی ہوئی بولی۔ تو میں کیا کروں؟ جنت غصے میں بولی، تم اب کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ تم نے تو بڑے خواب دیکھے ہوں گے زین کے ساتھ، مگر دیکھو اس نے مجھ سے منگنی کر لی ہے۔ لڑیب اکڑ کر بولی۔ لڑیب میڈم، ایک بات ذہن نشین کر لو، اب میں اتنی بھی گئی گزری نہیں ہوں کہ جو اس زین چوہے کے خواب دیکھوں گی۔ جنت طنزیہ مسکرائی۔ جنت میڈم، تم خود کو کون سی حور سمجھتی ہو جو اتنا اکڑتی ہو؟ لڑیب کے ساتھ کھڑی لڑکی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں تو خود کو کوئی پری بھی نہیں سمجھتی، اور اگر سمجھ بھی لوں تو اس میں کوئی شک نہیں۔ جنت نے بھی اکڑ دکھائی۔ او ہیلو، اتنی غلط فہمی مت پالو اور خود کو دیکھو سڑی ہوئی ہو۔ لڑیب ہنستی ہوئی بولی۔ ساتھ کھڑی لڑکی بھی ہنسنے لگی۔ تبھی اسکول کی گھنٹی بج گئی۔ تم تو لڑیب ہو ہی فارغ، اور ہمارا بھی سارا ٹائم ویسٹ کر دیا ہے، جنت نے آئی برو اچکا کر کہا، اور واپس کلاس میں اپنی سیٹ پر چلی گئی۔ آہستہ آہستہ سارے اسٹوڈنٹس کلاس میں آ گئے۔ جنت مسلسل مسکرانے لگی۔ زرون کی باتیں اس کے دماغ میں گونجنے لگیں اور اسے احساس ہی نہ ہوا کہ کلاس میں ٹیچر کب آ چکی ہیں۔ خود میں ہی مگن تھی کہ ٹیچر نے جنت کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور انہیں احساس ہو گیا کہ جنت خوش ہے۔ وہ بھی خوش ہو گئی۔ اسٹوڈنٹس، آپ سب کی آج اسٹڈی نہیں ہوگی، آپ سب دوسری کلاس میں جا کر فنکشن کی تیاری کریں۔ ٹیچر یہ کہتی باہر نکل گئی۔ سارے دوسرے روم میں چلے گئے۔ جنت ابھی انٹر ہی ہوئی تھی کہ سامنے سے زین آ گیا۔ ہائے جنت، زین نے دیوار سے ٹیک لگائی۔ کہیں درد ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، میرے پاس کیوں ہائے ہائے کر رہے ہو؟ جنت کی بات پر سارے اسٹوڈنٹس زین پر ہنسنے لگے۔ زین نے غصے میں جنت کی کلائی زور سے پکڑ لی۔ تم اپنے آپ کو کون سی توپ سمجھتی ہو؟ زین نے اس کی کلائی مروڑتے ہوئے کہا۔ زین، میری کلائی چھوڑو، مجھے 1 منٹ نہیں لگے گا تمہیں اسکول سے نکلوانے میں۔ جنت غصے میں کہتی اپنی کلائی چھڑوا کر وہاں سے چلی گئی۔ سارا دن گزارنے کے باوجود جنت نے کسی سے کوئی بات نہ کی۔ چھٹی کے وقت جنت باہر آئی، اس سے کوئی بھی نہ لینے آیا۔ جنت کا مزید پارا ہائی ہو گیا۔ آدھا گھنٹہ کھڑا ہونے کے بعد اسے ڈرائیور لینے آیا۔ جنت غصے میں گاڑی میں بیٹھی اور پورا زور لگا کر غصے میں دروازہ بند کیا۔ کہتے ہیں مجھ سے محبت ہے اور میرے لیے 5 منٹ تو نکال نہیں سکے کہ مجھے اسکول سے پک کر لیں۔ میں بھی نہیں بلاؤں گی، ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ جنت غصے میں خود سے باتیں کرنے لگی۔ گیٹ کے اندر گاڑی داخل ہوئی۔ جنت وہیں اتر گئی۔ پیر پٹکتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ زرون سامنے اچانک سے آ گیا۔ جنت اسے گھورتی ہوئی اندر جانے لگی۔ زرون نے راستہ روک کر اس کے سامنے خوبصورت سا گلاب کا پھول کیا۔ مجھے نہیں چاہیے، شدید غصے میں آ کر آگے چلی گئی، اور ابھی وہ سیڑھیوں تک ہی گئی تھی کہ اسے کچھ سوجی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، زرون نے پھول کو بری طرح سے ہاتھ میں دبوچا ہوا تھا۔ جنت بیگ پھینکتی زرون کے پاس بھاگ کر آئی۔ یہ پاگل پن ہے، پاگل ہو گئے ہیں، کتنا خون نکل رہا ہے، آپ کو کون سا شوق چڑھا ہوا ہے خود کو تکلیف دینے کا؟ میں غصے میں تھی نا، مجھے مارے، خود کو کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ جنت نے غصے میں کہتے ہوئے زرون کا ہاتھ پکڑ لیا جس میں کانٹے چبھ گئے تھے، جس کی وجہ سے خون بہہ رہا تھا۔ پاگل انسان، ادھر بیٹھ جائیں، آج کے بعد میں نہ دیکھوں ایسی لاپرواہی۔ جنت نے اس کے صوفے پر بٹھایا، خود فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر لائی۔ جنت، کیا ہو گیا ہے؟ کانٹا ہی تو لگا ہے، اس میں بینڈیج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ زرون نے لاپرواہی سے کہا۔ اب تو وہ جان بوجھ کر لاپرواہی برتنے لگا تھا کہ اب اس کا خیال رکھنے والی جو مل گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جنت زرون کا ہاتھ چھوڑ کر اوپر چلی گئی۔ زرون، یہ سب کیا ہے؟ پیچھے کھڑی پریشے غصے میں چلائی۔ زرون پریشے کو دیکھ کر ڈر گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ پریشے کب سے وہاں کھڑی ہے۔ کیا مطلب پریشے، کیا ہوا ہے؟ زرون نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔